Dear students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Let's start with the chapter. Come to the page number 49, poem The Indian National Flag. Students, first of all, I will recite this wonderful poem and then I will explain you according to the stanza wise. Let's start. Students, this poem is written by S.T. Tiwari. Come to the first stanza. First, unfurled was the Indian tricolour on Everest, the world's highest peak. All the three colours are deliberated to give some message and to speak. Dark saffron, white and Indian green, the three colours of our nation's flag, all in horizontal, rectangular bars seen, placed top to bottom, never to sag. The green band at the top says to all, increase the greenery and agriculture. The white band in the middle gives us the message of peace, truth and culture. Saffron tells us to be brave and courageous, never hesitate to sacrifice if the nation needs. The 24 spokes at the center say, on the path of progress, always proceed. Made of khadi, a hand-spun Indian cloth, it symbolizes the pride of the nation. The design and colors tell us what we need to do for progression. Students, I have recited you this poem. Now I will explain you according to the stanza wise. Come to the first stanza. First unfurled was the Indian tricolour on Everest, the world's highest peak. Students, poet कहता कि जो एवरेस्ट है, जो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, उसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है वो इंडियन ट्राई कलर का है, जिसको पहले अनफोल्ड किया. ऑल द थ्री कलर्स आर डेलिब्रेटेड. जो सारे थ्री कलर्स हैं वो बहुत डेलिब्रेटेड है, बहुत अट्रैक्टिव हैं. To give some message and to speak. और वो जो three colors है, see here in this picture, these are the three colors of our Indian national flag, green, orange and white. So what these colors reflect? These colors give some message to us and ये इतने attractive है. All these three colors are vibrant and also give some message. डार्क सेफ्रॉन, वाइट एंड इंडियन ग्रीन. जो डार्क ग्रीन है, जो डार्क सेफ्रॉन है, वाइट है और ये जो ग्रीन कलर है, द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशंस फ्लैग, ये तीनों हमारे नेशन कंट्री का जो फ्लैग है उसके कलर्स हैं. ऑल इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स सीन. इसमें हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स बनी हुई हैं तीनों कलर्स की जो दिख रही हैं. प्लेस्ड टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक. नेवर टू सैग, कुछ भी उसमें लेस नहीं होता, टॉप से बॉटम तक वो दिख रही हैं, कोई भी वैल्यू में कम नहीं है. सारे कलर्स जो है फ्लैग के वो इक्वल हैं.
जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर। द ग्रीन बैंड एट द बॉटम सेज टू ऑल, जो ग्रीन बैंड है वो सबको बता रहा है कलर। इंक्रीज द ग्रीनरी एंड एग्रीकल्चर, उसका मेन मोटिव क्या है, दैट टू अवेयर द पीपल टू इंक्रीज द ग्रीनरी एंड एग्रीकल्चर, ताकि वो ग्रीनरी को इंक्रीज करें और एग्रीकल्चर को इंक्रीज करें। द वाइट बैंड इन द मिडल गिव्स अस, जो वाइट बैंड है ये मैसेज दे रहा है, द मैसेज ऑफ पीस, ट्रुथ एंड कल्चर। जो ग्रीन बैंड है दैट गिव्स अस मैसेज so as to increase the greenery as well as agriculture, but white band gives us message of peace, truth and culture. Come to the third stanza. Saffron tells us to brave and courageous. जो saffron कलर है लाइट ऑरेंज, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कलर, टेल्स अस, क्या मतलब बता रहा है हमें, टू बी ब्रेव, कि कैसे ब्रेव एंड करेजियस रहना है। नेवर हेजिटेट टू सेक्रीफाइस, कभी भी सेक्रीफाइस के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। इफ़ द नेशन नीड्स, अगर हमारी नेशन को नीड है उसकी सेक्रीफाइस के लिए कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। द 24 स्पोक्स एट द सेंटर सेज, जो 24 स्पोक्स है, जो बीच में फ्लैग के बीच में एक सर्कल बना होता है, जो 24 स्पोक्स हैं वो ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑलवेज प्रोसीड, वो बता रहे हैं कि जो हमारी पाथ ऑफ प्रोग्रेस होती है वो हमेशा प्रोसीड करती है, हमें आगे तक लेके जाती है। जो हमारी पाथ है वो जो 24 स्पोक्स हैं, जो सेंटर में सर्कल बना होता है फ्लैग के, वो स्पोक्स बता रहे हैं कि हमारी जो पाथ है वो हमारे प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही है और हमें हमेशा प्रोसीड करना है। वो हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही है और हम आगे की तरफ मूव करना है हमें। मेड ऑफ खादी आ हैंडस्पन इंडियन क्लॉथ, जो इंडियन क्लॉथ्स हैं, जो हमारे इंडियन क्लॉथ्स हैं मेड ऑफ खादी आ हैंडस्पन, वो खादी और हैंडस्पन के बने हुए हैं। वो क्या सिंबलाइज करते हैं, इट सिंबलाइजेज द प्राइड ऑफ द नेशन, वो नेशन की प्राइड को सिंबलाइज करते हैं। द डिज़ाइन एंड कलर्स टेल्स अस, जो डिज़ाइन है और कलर्स है वो बता रहे हैं व्हाट वी नीड टू डू फॉर प्रोग्रेशन, हमें प्रोग्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, जब हम किसी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड है। ये जो डिज़ाइंस हैं और कलर्स हैं ये हमें वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है आगे डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. Read this poem carefully. Thank you. Have a nice day.